اور اگر قیامت نہ آئی تو پھر موت آ جائے گی، وہ بھی پہلا گفٹ ہے مومن کے لیے۔ وہ پہلا گفٹ ہے۔ 3 تحفے ہیں اللہ کے پاس، موت، ظہور امام، قیامت۔ وہ مائی حاجم کا خواب، پہلے فوٹو سٹیٹ والوں کا کاروبار چلاتی تھی، 30 پرچے ضرور آگے کرنا ورنہ کاروبار ختم۔ وہ بڑے بڑے شریف لوگ جا کے فوٹو سٹیٹ کروا کے مذہب میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب وہاں سے جان چھوٹی، اب SMS پہ قیامت آئے۔ پہلا فکر ہوتا ہے ڈیلیٹ نہ کرنا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا نہیں، ڈیلیٹ نہ کرنا ورنہ 1 سال کے لیے اللہ کی ہو جاتا ہے۔ اس سال ایسے کسی میسج پر یقین نہ کرنا، یہ بڑا مولائی سال شروع ہوا ہے 2009 جنجانی صاحب، اس سے خوبصورت عدد والا سال ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 علی کا عدد ہے، 9 بطول کا عدد ہے۔ ایک طرف 2 ہے، ادھر 9 ہے، اور اس سال کے مقدر میں اللہ نے 2 دفعہ محرم رکھا۔ مقدر کا رونا وہ روئے جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ اپنا مقدر خود لکھتا، اس کی اپنی مرضی سے اس کا مقدر چلتا ہے۔ اس لیے سامعین گرامی خواب کیا دیکھتی ہیں؟ حضور آئے تھے خواب میں بتلانے کے لیے کہ میری امت کو بتا دو، ہاں یہ BBC ہے، اس کو رسول امت کو بتا دو بس قیامت قریب ہے۔ پھر بندے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کچھ حضرات نے ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے، فلاں سن میں فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے۔ ناسکٹ احمد سے لے کے شیخ راشد الخلیفہ تک جو بندے اپنی معلومات بڑھاتے چلے جاتے ہیں ان کے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ علی والے ہو تو قیامت سے کبھی نہ ڈرنا، کیونکہ قیامت کی جرت ہی نہیں کہ امامت سے پہلے آ جا۔ علی والا ہونا شرط ہے۔ وہ ڈرے جن کے پاس امامت نہیں ہے، جن کے پاس بادشاہت ہے وہ ڈرے، جن کے پاس امامت ہے ان کے لیے کوئی خوف نہیں۔ تو وہ مومنہ تھی، طوفان آیا پتہ نہ چلا، یہ مس اس تھی۔ اس کا مس بیہیو خراب کر گیا۔ باہر جو جلسے کرتی ہو اندر اس نے بچے کو چھوڑا ہو، باہر کمپین چلاتی ہے نوح کے خلاف، گھر میں بچے کی تربیت۔ پھنس گئے ہیں تم بھی اور ہم بھی، پھنسے پے ہیں۔ کس سے پالا پڑ گیا ہے؟ تیرا بھی نصیب میرا بھی مقدر۔ لوگوں کو کہتا ہے میں اللہ سے رزق لے کر دوں گا، ہمارے اپنے گھر میں 3 دن سے روٹی نہیں پکی۔ اس کا جرم تھا حجت کے اختیار میں شک، حجت کے اختیار میں شک۔ ان لوریوں میں اس نے کنعان کو بڑا کیا، تو تربیت غلط تھی اماں کی، بدنام ابا ہو گئے۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ رابعہ کا بیٹا خراب نکلا، نوح کی بیوی تھی رابعہ کا بیٹا خراب نکلا۔ جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نوح کے بیٹے نے اطاعت نہیں کی، نوح کا بیٹا خراب تھا، نوح کا بیٹا خبیث تھا۔ بھئی تربیت تو ماں کی غلط ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ تربیت ماں کی بھی غلط ہو، کھاتے میں باپ کے جاتی ہے۔ اسی لیے خدا نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اپنے کسی نبی کی ایسی بیوی کو اولاد ہی نہیں دو گا۔ میرا نبی بدنام نہ ہو، تاکہ میرے نبی کو بدنامی نہ ہو۔ اسے اپنے نبی پیارے، اسے اپنے نبیوں کی عزت پیاری۔ شک کرنے والیوں کو بیٹے دے دیتا، وہ مباہلہ میں نہ بھیجتی، رسالت تو گئی تھی۔
तवज्जो है या नहीं आप हजरात? मुबाहला में बेटे रखने थे अदले इलाही की शर्त पर। सच्चा समझती होती वो माँ बेटे भेजेगी जो रसूल को सच्चा समझती होगी और जिसे रिसालत में शक रहता हो। उसने बेटे भेजने नहीं थे, अपनाना वाली सीटें खाली रह जाती। इसलिए जरूरत थी कि उस माँ को रसूल के बेटे दिए जाए कि जिसे रिसालत में शक न हो। ऐसी माँ के बेटे हैं रसूल के बेटे, चादर के नीचे आ गए। नूह ने अल्लाह से कहा ये मेरे अहले बैत, उसने कहा नहीं है, और रसूल ने चादर में दाया हाथ उठा दिया। ताहिर कादरी साहब का फिक्रा बहुत खूबसूरत है, आपकी नजर करता हूं। उनसे किसी ने कहा कि आप अहले सुन्नत हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। तो अली अली क्यों करते हैं इतना? सब बराबर है, बाकियों की भी तारीफ कीजिए। क्या आप उनमें और अली में कोई फर्क समझते हैं? ताहिर कादरी साहब ने कहा ऐसा वैसा फर्क। आप जो देख सकता है एक मिनट देखे, ऐसा वैसा फर्क का क्या फर्क है? उसमें सारे खलीफा ऐसे बने, अली ऐसे बने। अच्छा कोई चुप तोड़ जा, सारे मिलकर आखिर तक मिलकर, सारे मिलकर अली 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 अली। उनका बाकियों को भी मैं खलीफा मानता हूं, लेकिन वो ऐसे बने, ऐसे। और अली ऐसे खलीफा। पैगंबर ने बिठाया और दाया हाथ उठाया, पब्लिक से नहीं, अल्लाह से कहा अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती। ऐ अल्लाह ये है मेरे अहले बैत। घड़ी पे लिखा ना मेड इन जापान, शुबा नहीं रहता कि जापान की गारंटी है। हदीस किसा के लिए रसूल की गारंटी है। तालिब हाजत सुनेगा तो हाजत पूरी हो जाएगी, मगमूम सुनेगा तो गम दूर हो जाएगा। इसलिए अपने घरों में खसूसियत के साथ शब जुमा में, जहां पहले की तरह से कई घरों में खत्म होता जा रहा है, अज़ादारी हुसैन, ज़ियारत इमाम हुसैन और हदीस किसा, दुआ कुमैल, इनको जारी और सारी कीजिए। कई नौजवान परेशान हो जाते हैं, दुआ कुमैल में किस तरह से फिक्रे लिखे हुए हैं, हदीस किसा में कैसे लिखे हुए हैं, इनको समझना हो तो एक फिक्रा याद रखिए, जब आले मोहम्मद उससे बात करते हैं तो दुआ कुमैल बन जाती है, जब वो इनसे बात करता है हदीस किसा बन जाता है। अगर दुआ कुमैल की इनके सारी परेशान करे तो परेशान न होना, बड़े के सामने ताकत का इजहार बदतमीजी होता है। जो अली से बड़ा था उससे अली ने ऐसे गुफ्तगू की और उसने अली के फदाइल बयान किए, पूरे खानदान के फदाइल बयान किए। परवरदिगारा ये है मेरे अहले बैत, बखासती वहम्मती, लहमुहुम लहमी बदमुहुम दमी। ये मेरे अहले बैत है। ये अल्लाह कह देता नहीं मोहम्मद और भी है, खाली ये नहीं है और भी है। कहा नहीं ये है मेरे अहले बैत, ये है। जिब्राइल ने पूछ लिया परवरदिगारा चादर के नीचे कौन है? किबला हद हो गई, घर का नौकर पूछ रहा है कौन है? या रब्बे ओमन तातल के साथ मालिक चादर के नीचे कौन है?
21 جملے ہیں قبلہ اس وقت میرے ذہن میں بزرگ علماء کے، ان میں سے میرا کوئی جملہ نہیں ہے، سارے بزرگ متقدمین علماء کے جنہوں نے قبلہ یہاں پر تعارف کرایا کہ جبرائیل نے کیوں کہا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ آپ پہلا فکرہ سنیے علامہ زیدی اللہ مقاموں کا، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ فرماتے تھے کہ اندھیرے میں اگر کوئی جا رہا ہو اور یکدم کوئی لائٹ مار دے تو بندہ پوچھتا ہے کون ہے؟ غور ہے یا نہیں آپ کو؟ آج اسے زیدی صاحب کی سمجھ نہ آئے اسے پھر اللہ سمجھے گا، اس سے آسان کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا کہ اندھیرا ہو یکدم آنکھوں میں لائٹ، کون ہے بھائی؟ فرماتے تھے رسول آئے لائٹ نہیں نکلی، حسنین آئے لائٹ نہیں نکلی، علی آئے لائٹ نہیں نکلی، بطول آئی نور نکلا، فاطمہ آئی نور نکلا، اور جبرائیل نے پروں کو آنکھوں پہ رکھا، یہ چادر میں کون ہے؟ یہ چادر میں کون آ گیا؟ اگلا فکرہ سنی مبلغ اعظم کا فکر محمد اسماعیل رحمت اللہ قبلہ فرماتے تھے بات یہ ہے فرشتوں کا کچھ ادھار نکلتا تھا اللہ میاں کی طرف۔ ایک دن اللہ میاں نے ان سے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ وہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا انبئونی باسمائہم، ذرا مجھے ان کے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا قرضہ اتاریں گے، آج تو بتاؤ۔ جو ہے یہ نہیں آپ کو آئیے نکن صاحب قبلہ اللہ مقامہ کا فکرہ سنیے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ فرماتے بات یہ ہے عرش پہ ہر وقت ہوتی ہے مجلس، موضوع ہوتے ہیں پنجتن، کبھی اللہ پڑھتا ہے فرشتے سنتے ہیں، کبھی فرشتے پڑھتے ہیں اللہ سنتا ہے۔ موضوع پنجتن ہے، اسی موضوع پہ وہاں پہ مجلس ہوتی رہتی ہے، کبھی فرشتے اللہ فرشتوں نے کہتا ہے چلو مجلس پڑھو۔ اور ایک فکرہ اور بھی سن لیجیے، استفہام ہمیشہ دلیل جہالت نہیں ہوتا، سوال ہر وقت جہالت کی دلیل نہیں، ہر پوچھنے والا جاہل نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کیوں پوچھتا موسیٰ سے تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ نوجوان حیران نہ ہوا کرے کتابیں پڑھ کے، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اللہ میاں کو پتا نہیں تھا کیا ہے، پتا تھا، پوچھ لیا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ ہوشیار ہو گئے، جڑ گئے، عصا ہے، بڑے کام کی چیز ہے، تکیہ بناتا ہوں، خیمہ بناتا ہوں، بھیڑیں ہانکتا ہوں، چادر بنا لیتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کیا ہے بتاؤ اور ختم کرو۔ تم فضائل پڑھنا شروع ہو گئے کہ کیا کیا کرتا ہے ایسا، چپ کر کے بتاؤ حال آسائی، بات ختم۔ یہ لمبی بات کیوں کی؟ کہا خدا کو نہیں پتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ مجھے ہے عصا سے پیار، اور جب کسی سے کسی کے محبوب کی بات کرو تو وہ بات لمبی کرتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ابھی ذرا توجہ فرمائیں گے تو بات آگے ہوگی۔ یہ جو حیران نوجوان آگے آگے بیٹھتے ہیں ذرا یہ زیادہ توجہ کریں، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ محبوب کی گفتگو پیاری لگتی ہے، اس کے متعلق چھیڑو تو بندہ لمبی لمبی چھوڑنی شروع کر دیتا ہے۔ اب موسیٰ سے اللہ نے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیونکہ اللہ موسیٰ کی زبان سے عصا کے فضائل سننا چاہتا تھا، لہذا موسیٰ نام پر نہ رکے بلکہ فضائل پڑھنا شروع کر دیے۔ جبرائیل کو بھی پتا تھا اللہ بندے در سے محبت کرتا ہے، اس کی زبان سے فضائل سننا چاہتا تھا، تب اللہ ناموں پر نہیں رکا، ہم فاطمہ تھا وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوہا ہم اہل البیت النبوت ومعدن الرسالت انی ما خلقت سماعا مبنیہ ولا عرضا مدہیہ۔ اللہ نے خالی نام نہ بتائے، فرشتوں کو پنجے دن کے فضائل سنانا۔
हुसैन आपको सलामत रखे। ईमान की जवानी को ज़ईफ़ी न समझना, ये वो मोहब्बत अली है जो जवानी अता करे। इसलिए तो जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाता। अली की मोहब्बत वाली जवानी होगी तो जन्नत में जाओगे। याद रखिए सामईन गिरामी कद्र, ये मोहब्बत अहले बैत है। खुदावंद कुद्दूस की नजर में न बनाता मैं सूरज अगर इन्हें न बनाता। जब तक मकसद रहता है तब तक चीज रहती है। मिंबर का मकसद मजलिस, लाउड स्पीकर का मकसद, माइक का मकसद मजलिस। मजलिस है तो ये बोल रहा है, या मजलिस नहीं होती फिर थोड़ी बोलता है। टेंट का मकसद मजलिस। आप किबला जवाद अली जैसा फरमा सकते हैं, मैं दरिया न बिछवाता, मैं मिंबर न लगवाता, मैं टेंट न लगवाता, मैं स्पीकर न लगवाता अगर मजलिस न होती। तो जब सदा खाने में मजलिस तमाम हो जाएगी, शोएब की मजलिस के बाद ये भी गए, वो भी गए, ये भी गए, वो भी गए, मकसद रहेगा तो चीज रहेगी। सूरज बने अहले बैत के लिए, चांद बना अहले बैत के लिए, सितारे बने अहले बैत के लिए। कितना कम वक्त है वो मुल्ला जो कहता है ये मर गए, चले गए होते तो जमाना बाकी ना हो। इसलिए इमाम ने फरमाया नहनो फिल अजसाद अशबाहुन। शाह अब्दुल अजीम राय में तेहरान में, जिनके बारे में इमाम अली नकी की हदीस है, वल्लाहि अंत वलियुना हक्का, खुदा की कसम तू हमारा हकीकी वली है। और उसकी जियारत मिस्ल जियारत इमाम हुसैन हसनी सैयद साहब। अगर करबला न जा सके, मासूम इमाम का फरमान है। और ये सोने के साथ जो ज़ाहिरीन तशरीफ फरमाए उसके रोजे पे जा बजा लिखा हुआ है कि अगर कोई करबला न जा सके, शाह अब्दुल अजीम की जियारत कर ले, उसे मिस्ल करबला के सवाब होगा। शाह अब्दुल अजीम हसनी, ये सहीफे कामिला के दो नुस्खे थे, एक हसनी सादात के पास और एक हुसैनी सादात। सातवें इमाम के पास एक नुस्खा था, एक शाह अब्दुल अजीम के पास। मिलाया गया तो ज़ेर ज़बर का फर्क न था, और वही पूरी दुनिया में राइज है। और यह कुरान के बाद इस्लाम की पहली किताब, नहजुल बलागा से भी पहले लिखी गई, जिसमें आले मोहम्मद ने उससे बोलने का सलीका बताया। खुदा की कसम, अल्लाह पर अहले बैत के अलावा कोई गुफ्तगू कर ही नहीं सका, क्योंकि गुफ्तगू वो करे जिसने पहचाना हो। जो 40-40 साल पुतों के सामने झुकता रहा, उसे क्या पता कि रहमान कौन है, उसे क्या मालूम कि तौहीद क्या है। खुदा की कसम, ये शाह अब्दुल अजीम हसनी जिसने इमाम से पूछा माल हकीकत, मौला हकीकत क्या है, फमा नहनु फिल अजसाद अशबाहुन व फिल अशबाह अरवाहुन व फिल अरवाह अनवारुन व फिल अनवार असरारुन। मौला क्या है हकीकत? फरमाया हम जिस्मों में शबी है। ये शबी क्या है? आईने में जो नजर आती है वो शबी, वो कुछ करती है जो जो आप करते हैं। छोटा बच्चा जब शुरू शुरू में इससे वाकिफ होता है, बड़ी बड़ी हरकतें इसके सामने, ये चला गया, वो भी चला गया, ये हाथ उठाया, उसने भी उठा दिया, शक्लें बिगाड़ बिगाड़ के उसे दिखाई, मेरी नकलें कर रहा है। हू बहू होता है उधर, वो जो अंदर होता है आईने के अंदर, उसे कहते हैं शबी। इमाम फरमाते हैं हम जिस्मों में शबी हैं। एक नासिर अब्बास खड़ा था इधर, एक खड़ा था आईने में। आईने वाले को किसी ने पत्थर मार दिया, खुश हो गया कि मैंने मार दिया, और मैं हंसने लगा, ये तो शबी थी। अब पता चला ये खंजर के नीचे मुस्कुराते क्यों थे, कि जिस्मों में शबी थे। और ये छोटे बच्चे हैं, इनको मैं समझाता हूं। एक आईना था, उसको तोड़ दिया, 40 टुकड़े पड़े थे उसके। अब यूं ऊपर करके आपने देखा,
उसमें भी आप थे, उसमें भी आप थे, उसमें भी आप थे, उसमें भी आप थे। अब पता चला लिए एक वक्त में 40 घरों में कैसे गए। अमीर मुमकिनात एक वक्त में 40 घरों में कैसे गए, जिस्मों में शबी है। और अगर कोई शबी इतनी ताकत पैदा कर ले कि वो हमारे ताकत में, तो फिर हम अरवाह में चले जाते। और अगर कोई रूह हमें ढूंढने लगे, हम अनवार में चले जाते। और अगर कोई नूरी हमारा ताक़ुब करे, फिर हम अल्लाह का राश बन के छुप जाते हैं। उसका माला और का बस इतना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। पता नहीं आगे क्या था जिसे हसनी बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसे इमाम हसन का पोता बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या इसके आगे जो है बस खामोशी इख्तियार करो, चिराग बुझा दो। देखा तो सुबह हो गई थी, इन 4 जुमलों में सुबह हो गई थी। नहीं मालूम, नहीं बताना चाहते थे तो वक्त को खींच लिया, क्योंकि कायनात इनके इख्तियार में। और जिसने इनसे सच्ची मोहब्बत की, खलूस के साथ, चूं चरा के बगैर, दुनिया आखिरत का बादशाह, इनसे मुखलिस हो जाओ, जन्नत तुम्हारी। मलकल मौत पीर भाइयों जैसा सलूक करेगा। मुनकर नकीर भी कोई गैर नहीं है, मुनकर नकीर भी कोई गैर नहीं, वो भी पीर भाई। सारे काम सीधे हो जाएंगे अगर इधर से इनसे मोहब्बत हो, सच्चे दिल के साथ। नबी थे अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाला। जिसे या अली कहने का सलीका आ जाए, फिर वो वली बन जाता। पूरा खानदान, इसमें कुर्बानी ऐसी दी है, रहती दुनिया तक जवाब नहीं लाया जा सकता। खुदा की कसम, फहमे बशर से बाला तर है हुसैन, मलाइका शशतर है हुसैन पर, अंबिया हैरान है हुसैन। क्या कारनामा दिखाया तूने हुसैन, क्या किया तूने हुसैन। एक अहले सुन्नत शायर फरमाते हैं, तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार था। इख्तियार के बावजूद एक दो नहीं, भरा घर लुटा दिया। 60 हिजरी में हुसैन का घर भरा हुआ था, और हुसैन अब पोतों वाले हो गए थे। मोहम्मद बाकर दुनिया में आ चुके थे, बूढ़ा नहीं था हुसैन, दाढ़ी स्याह थी, कमर सीधी थी, निगाह ठीक थी। तब ना होता 10वीं मुहर्रम का दिन, अली अकबर के लाशे पे आए तो आंखों का नूर चला गया। अब्बास के लाशे पे आए तो कमर टूट गई। असगर के तीर लगा तो सारे बाल सफेद हो गए। ये दिन हुसैन के आंसुओं का सदका, जी भर के मजलिसों में जाइए, वक्त को गनीमत समझिए और दुआ कीजिए, शहजादी मुझे इतनी ताकत दे, मैं हर साल से ज्यादा तेरे बच्चे की आजादारी कर। आंसू रुकने ना पड़े, सुनने में कमी ना हो, पढ़ने में कमी ना हो। अगले साल वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। कितने थे जो हमारे साथ थे, इस साल नहीं है, और नहीं मालूम हम में से कौन अगले साल मौजूद ना हो। हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के सुन। जाबिर इमाम के घर मजलिस सुन रहा था, मुंह पर रुमाल रख के रो रहा था।
या इमाम ने जलाल में कहा जाबिर मेरे मजलूम बाबा को रोता क्यों नहीं? उसने जल्दी से भीगा हुआ रुमाल दिखाया, मौला ये देखिए भीगा हुआ रुमाल। कहा वाह जाबिर, रोना हुसैन को और मुंह पर रुमाल रखे रोना। कहने लगा मौला कैसे रो? फरमाया वैसे रो जैसे दादी ज़हरा जन्नत में रोती है। काफिले सब्र रज़ा मदीने से चल पड़ा। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, वहां से आगे दो जुमले पढ़ता हूं। पहली मर्तबा काफिला, यह काफिला रुका जब हुसैन ने खुद से रोका कि मैं शुगरा से मिलने जाना चाहता। दूसरी मर्तबा काफिला जनाब उम्मुल बनीन ने रोका, अब्बास को कब्र रसूल पे लेके गई थी। एक हाथ रसूल की कब्र पे रख, दूसरा मेरे सर पे। वादा कर जब तक तेरे बाजू सलामत रहेंगे तीसरी मर्तबा काफिला हजरत अब्दुल्ला ने रोका था। बीबी फरमाती है मैं महमल में तड़प गई थी, कहीं वापस बुलाने तो नहीं आ रहे। लेकिन अब्दुल्ला ने एक फिक्रा कहा था, बीबी हुसैन से मेरे दो रिश्ते हैं, खून के रिश्ते में हुसैन मेरा भाई है, शरीयत में मेरा इमाम है, और जब इमाम पे मुश्किल बन जाए रैयत में सदका देना वाजिब होता है। अली की बेटी महमल में तड़प के पूछती है, अब्दुल्ला क्या तुम इतने अमीर हो गए, तुम्हारे माल में कोई ऐसी चीज है जो मेरे भाई हुसैन के सदका हो सके? अब्दुल्ला ने औना मोहम्मद का हाथ पकड़ के आगे कर दिया, क्या आज जाना हदिया है, बहन भाई कबूल कर लो। मौला मेरा आपका शुमार रोने और रुलाने वाला कोई एक ऐसा आंसू हो जो इस मुहर्रम में हुसैन की मां कबूल कर ले, फातिमा ज़हरा राजी होकर चली जाए। आज जाना हदिया लाया हूं, अगर बहन भाई कबूल कर लो। जहां हुसैन में मुश्किल आए एक को अपनी तरफ से सदका कर देना, एक को मेरी तरफ से सदका कर देना। शाम गरीबा में सलाम में फिक्रा सुनते होते हो, मुसाफिरत में जिसे बेबसी ये दिखलाई, मुसाफिरत में जिसे बेबसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। शरीकतुल हुसैन बीबी मक्के में काफिला पहुंचा। अब जब मक्के में आए तो एक मरतबा अशराफ मक्का इकट्ठे हुए। अशराफ मक्का इकट्ठे हुए और अशराफ मक्का कहने लगे, हुसैन तुम्हारे अब व जद का तरीका यह था कि जब कभी हज करने आते थे तो कुर्बानी के जानवर साथ लेकर आते थे। ने तुम्हारे साथ कुर्बानियां नहीं देखी। हुसैन ने अकबर और कासिम और अब्बास को बुलाया, कहने लगे ऐसी कुर्बानियां कोई लाया था? अब इन रातों में और आने वाली मजलिसों में अगर मसाइब जरा सा तवील हो जाए तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा, क्योंकि खुद अपना दिल मेरा रोने को चाहता है और मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा ना हो जो रह जाए, हर एक की आंख में आंसू आ जाए और ये आंसू शफाअत का जरिया बन जाए
اور یہ आंसू मोहब्बत हुसैन की पेशखैमी करें। अजादारान इमाम मजलूम मक्के में बड़े अमन के दिन गुजर रहे थे। 3 शाबान को हुसैन मक्के पहुंचे थे। 15 शाबान की तारीख आई। बहन और भाई ने आपस में मशवरा किया। भाई कहने लगा, बहन बाबा अली थे, नाना के साथ होते थे, और मेरे रसूल के लश्कर में अकेला एक अली होता था। नाना जहां जाते थे फतह करके आते थे। मेरे साथ 4 अली हैं और मैं जंग मजलूमियत से जीतना चाहता हूं। ये चारों साथ हो तो मकसद पूरा नहीं होता। पहला अली मोहम्मद हनफिया, दूसरा अली मुस्लिम इब्न अकील, तीसरा अली अबुल फजल अब्बास, चौथा अली ज़ैनुल आबिदीन। भाई ने बहन के मशवरे से तय ये किया कि हनफिया को वापस मदीने भेज दो, मुस्लिम को कूफे रवाना करो। सज्जाद का जिम्मा बीबी ज़ैनब ने उठाया। अब्बास की जिम्मेदारी हुसैन ने उठाई। मुस्लिम को आवाज दे के कहा जाने लगा, मुस्लिम मेरा सफीर बन के चला जाओ। साहिब खुलासतुल मसाइब ने लिखा, क्योंकि सफीर को 2 गवाहों की जरूरत होती है, जो मुल्क की तरफ से साथ जाते हैं, गवाही देंगे ये सफीर है। हुसैन ने कहा, मेरी पूरी फौज में से जो 2 गवाह मर्जी चुनना चाहे चुन के चला जा। मुस्लिम ने रो के कहा, मौला आपके साथ ज़ैनब है, मैं आपकी फौज नहीं घटाऊंगा, अपने मोहम्मद और इब्राहिम को मोहम्मद और इब्राहिम को साथ लेकर जाऊंगा। खैमे में आए, तैयारी करने लगे। जानते हो ना कि जनाब मुस्लिम का हजरत अब्बास से रिश्ता क्या है? अब्बास की सगी बहन का सरताज है मुस्लिम। अब्बास की बहन जनाब रुकैया मुस्लिम इब्न अकील की जौजा। इसमें कोई शक नहीं कि अब दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं जिसमें हुसैन की मजलिस ना होती। कायनात में आप इंटरनेट पे बैठ जाइए, आप पूरी दुनिया में देखिए, हर जबान में हुसैन का जिक्र हो रहा। खाली मशहद इमाम रिजा में 21 जबानों में रोजाना मजलिस होती है, रोजाना 21 जबानों के अंदर। लेकिन जो तासीर खुदा ने सराइकी को अता की है, उसकी वजह उलमा लिखते हैं कि एक हरम थी हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, जिनका ताल्लुक सिंध से था, वाक़े करबला में साथ थी। शाम से चले तो मौला ने इन्हें हुक्म दिया, वतन में जाके हमारी कहानी तो वो कहानी सुनाती थी। इस मजमे में भी अक्सरियत मुझे ऐसी नजर आ रही है, मियां वाली से, मुल्तान से, भक्कर से, मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे हजरात जो सराइकी ज़बान को समझते हैं। मेरा दिल चाहता है कि जो हजरत मुस्लिम ने हजरत अब्बास को फिक्रा कहा है, वो 4 सतरें लिखी थी हजरत सैयद अली शाह ने। ये 100 साल पुराना जाकिर है। मुसल्ले पे बैठ के जाकिरी लिखने और करने वाले लोग, जिनकी जितने भी आज जाकिर हैं उनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। इस तर्ज जाकिरी के जो सराइकी में होती है, ये उसके मूजिज़ हैं। उन्होंने 4 सतरें लिखी थी कि एक मरतबा मुस्लिम ने अब्बास को बाजू से पकड़ा और काफले से दूर लेकर गए और शहरा में खड़े होकर वसीयत करके फरमाया, तेरे नाल है पूर शरीफा दा।
दिल करे तो मातम कर देना। तेरे नाल है पूर शरीफा दा नाडी को सफर करावी, तेरे गैरतमंद कुल फौजी हैं हर के को सफर दीवामी। चौथे मिसरे में मातम है, मातम कर लेना। तेरे नाल है पूर शरीफा दा नाडी को सफर करावी, तेरे गैरतमंद कुल फौजी है हर के को सफर दीवावी। नामूस दा गाजी जिथा लफ्ज आवे सर थड़ दी बाजी लावी, तोड़े अपनी भेड़ थी कैद वजी ना ज़ैनब कैद कर। मुख्तार से भी नामूस दा गाजी जिथा लफ्ज आवे सर थड़ दी बाजी लावी, तोड़े अपनी भेड़ थी कैद वजी ना ज़ैनब कैद करावी। यही वजह है जब मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में भेड़ियां थी, कमर में लंगर था, गर्दन में दाग था, और जैसे ही मुस्लिम दरबार में दाखिल हुए एक सिपाही खड़ा देख रहा था, उस इब्ने जियाद के सिपाही ने मुस्लिम को दरबार में जाते देखा। फिर 13 मुहर्रम को उसी सिपाही ने दरबार में सज्जाद को आते देखा। आगे बढ़ के कहता है सज्जाद मुस्लिम इमाम नहीं था, लेकिन हथकड़ियों के बावजूद सर उठा हुआ था, सीना तना हुआ था। आप इमाम होकर गर्दन झुका के आ रहे हैं। सज्जाद ने फरमाया तूने इंसाफ नहीं किया, चचा मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ ज़ैनब सकीना माता करके जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। सब मातम करके फिक्रा सुनना। आखिरी फिक्रा मातम का फिक्रा है। आखिरी मैं बहुत तवील हो गया, माजरत चाहता हूँ, अब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। एक मरतबा हुसैन मंजिल जुबाना पे अपनी कमर पर हाथ रख के उठे, अलैका सलाम। अब्बास तड़प गए, मौला किसे सलाम किया? रोने का बहाना चाहिए। एक जालिम ने जंजीर खींची थी मुस्लिम की, अमीर को सलाम कर छिड़का और शेर की तरह गर्जा मुस्लिम। माली अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं हुसैन के अलावा। ये आवाज हुसैन तक पहुंच गई और जानते हो हुसैन ने क्या वादा किया? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ए मेरे दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहने वाले मुस्लिम, जा हुसैन का वादा हो गया, दुनिया कयामत तक तुझे अमीर मुस्लिम कहेगी और मुझे गरीब हुसैन। सारे मुस्लिम को अमीर कहते हैं, फातिमा के बच्चे को सारी दुनिया गरीब हुसैन कह के पुकारती है। अब्बास ने पूछा मौला ये किसको सलाम किया है? फरमाया कूफे के दारुल अम्मारा से, कूफे के दारुल अम्मारा से मेरे मुस्लिम ने मुझे आखिरी सलाम किया। हुसैन अर्ज कर फरमाते हैं अब्बास ने हाथ जोड़ लिए, कहा मौला मुझे भी दिखाइए। कहा अब्बास पहले वादा कर, कूफा जाने के तो नहीं कहेगा। कहा मौला वादा हो गया। हुसैन ने उंगलियां उठाई, अब्बास ने देखना शुरू किया, मेरा गाजी तड़प के हुसैन के कदमों में गिरा। कहा मौला मुझे कूफे पहुंचा दे। जो झोलियां औलाद के लिए तरसती है, झोलियां फैलाना जो रेस के लिए, सेहत के लिए, खुदा से ये जमशेद अजीज साहब को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, नजर मोहम्मद खान साहब को औलाद नहीं ना दे। जितनी भी दुआएं दिलों में ये रख के फिक्र सुनना। अब्बास फरमाते मौला मुझे कूफे जाने दीजिए। आवाज आई अभी अभी तो वादा किया था कि जाने की जिद नहीं करोगे। कब मौला मैं लड़ने नहीं जाता, दारुल अम्मारा की छत बड़ी ऊंची है, अभी जब सर कट के गिरेगा तो बड़ी बुलंदी से
मातम जारी रखो। मैं आखिरी फिक्रा देता हूँ। ओ मेरे बच्चे के सफीर, अरे सर तो फातिमा ने ले लिया, अब जरा पूछो थर कहाँ गया? जालिमों ने मुस्लिम के पाँव में रस्सी डालकर घोड़े पे बैठ के कभी उस बाजार में, कभी उस बाजार में रो के रुकैया करीब आई, हाथ जोड़ के कहने लगी, माला कूफे में लाशें दफनाने का रिवाज नहीं है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका